ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. ગુજરાત સાયન્સ સિટી ના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર આપ સૌનું સ્વાગત છે. ટુડે વી આર સેલિબ્રેટિંગ ધ બર્થ એનિવર્સરી ઓફ ડૉક્ટર હોમી ભાભા. He was a Indian nuclear physicist. He was known as a father of Indian nuclear program. So on this special occasion, we are celebrating the birth anniversary and we remember today Bhabha for his great contribution on nuclear program in our country. He was a founder of the nuclear program in India. So we are remembering Bhabha for his outstanding contribution in nuclear program. So on this occasion, Gujarat Science City is celebrating the birth anniversary, and today we organize a wonderful talk on India's prospect as a nuclear power. On this occasion, we are inviting one good expert, researcher, good communicator as a Bhumi Mehta Gajjar. Ma'am, welcome. Welcome. Thank you. Welcome. We have a short introduction of the madam. As you know, madam is working in a scientific as a scientific officer in ITER India. ITER India Plasma Institute for Plasma Research. ITER India is a international project, 7-country collaborative project, and as you know, ITER India is working in a nuclear energy project. We know very well the ITER India is a international project, and as the special on this day, the special vision on this special occasion, the vision of the Bhabha. Today our country is working on an international project. So we have today wonderful expert for talk. So I request Madam Bhumi Mehta Gajjar. Ma'am, welcome. Madam is working last more than 10 years in ITER India. So I request ma'am for today live talk session. Ma'am, please. Thank you, Pulkesh. Thank you, Gujarat Science City, for providing me this great opportunity to talk about nuclear power and basically to talk about the founder of this nuclear power, Dr. Homi Jahangir Bhabha. Once again, I am thanking all the audience, and I request everyone to ask me as many questions possible. If any question is there, I mean, I will be comfortable in all three languages, Hindi, Gujarati, English. So if required, you can request for any other language also. So today, as Pulkesh has already mentioned, that today is the birth anniversary of Homi Jahangir Bhabha, and he was the founder or the father of the nuclear program or nuclear power of our India. So we should actually remember him on this day because he has given us a very good gift, and I am going to speak a little bit about it. I will show you the basics of this, and I will show you the future, that how India is progressing in this among all other major countries, and what are our future plans, and how we are trying to solve the most important problems regarding the energy which we are facing currently. So I am starting my talk now. So this is one can see Dr. Homi Bhabha. He was born on 30th October 1909 in Mumbai at the time of British India, and actually he is a very great visionary. He is he born to a Parsi family, and everyone knows Vikram Sarabhai also. They have a similar background. If I can compare him with and Vikram Sarabhai, we known as a father of Indian space program. Similarly, he is a father of Indian nuclear program. He was also born in a very rich family, and
जो बोलते हैं ना कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का संगम था उनके पास. He was very very brilliant since childhood, and at the age of almost 24 he received his PhD from University of Cambridge, and he has received so many prizes, and main Adam Prize, Padma Bhushan. He was the youngest one who has received a fellowship of the Royal Society. So, and he has worked in many areas. Actually, his father with J.R.D. Tata wanted him to study mechanical engineering or metallurgy, and they wanted that he should take up that Tata business and work for those steel industry. But Baba was not happy with that, and he wanted to study physics, mathematics, and when he went to Cambridge, he worked with Dirac, and I mean very very known international scientists he has worked with. He has worked with Bohr also, and later on he developed a very good interest in the nuclear, because at that time this atomic or nuclear physics was the very new concept or very new field in which people are trying to move. And he was earlier in theoretical work, but later on he developed his interest in experiment, and he started doing experiment. And based on his research, he has worked in cascade process of cosmic radiations, point particles, and one major thing what he has given was a electron positron scattering. And in honor of him, it is now known as a Baba scattering. And this person was a really a brilliant person, and almost 2 to 3 times he was nominated for the Nobel Prize. And at the time when India, there was no one was there from India for even for the nomination of the Nobel Prize. Unfortunately, he didn't receive the Nobel Prize, but he was nominated 2 to 3 times. He has in 1939 he came back to India for a vacation, and later on this World War started, so he could not go back. And then he joined IISc, Indian Institute of Science in Bangalore, and here he worked with C.V. Raman. And under the guidance of C.V. Raman, again he developed a very good things. And with the help of Tata, he actually took a permission from the Nehruji that he was a visionary. He could imagine that nuclear power and nuclear atomic energy study and development in our country is very much required. So he convinced Nehruji, and because of that, with the help of Tata, he developed TIFR for the basic research or the fundamental research in the atomic energy field, and later on he has developed Atomic Energy Commission of India, which is now in honor of Bhabha, again known as a Bhabha Atomic Research Center. So these are all, there are many other things, but it is too long. So, basically he was a great visionary, and not only in nuclear power, he helped Vikram Sarabhai to develop the space program. His contributions are many more. Similarly, he was very, very expert in music and other things also, like painting and all. So that's why, as I told, he was having both brain and money, and with that he could develop very very good things in our country. So basically he has given a very good gift of TIFR and BARC to our country, and because of this our nuclear program is really at one particular stage. And during his at that time also we were really far in this, but unfortunately during 1966 in one plane crash we lost him.
at the age of 56. I mean, in the 56 years of age, he has developed so many things. If he would have survived, then I mean, India was at some other place. But anyway, it is, and there are lots of controversy regarding his death. But it is, I mean, because people are saying that the US doesn't wanted India to move ahead in this area. So these controversies are there, but the main thing for us is we lost him. But even because of his gift of these two institutes and many other things, uh, we have actually gained a very good position in the nuclear power generation and nuclear program among all other countries. Now, basically, if we talk about energy or nuclear power, first of all, I would like to give you some basics regarding what is exactly need. I mean, why we need energy or power, or what is exactly energy or power. So basically, if you want to move something, if you want to move one table or one, I want to take a pen in my hand, I need some energy. So that is a basic, very, very basic concept that we require energy to do any kind of work. And in our current time, first of all, world population is increasing. So I mean, at a faster rate, and with the population, our economy and our standard of living is also going very high and high. So basically, to meet both this growing population and rising, with the growing population and rising aspiration, our demand of energy is increasing day by day. And we know, on the other hand, that fossil fuels are going to end at some time. We have a very limited stock of fossil fuel. So to meet our demand, and there is a survey by and this survey, actually global survey, world primary need, if we can see around 1970 or 80, it was very low, which has increased now, almost doubled, and by 2030 it is going to increase triple. And the oil and gas, these are the major things, I mean, fossil fuel which we are using tremendously, and its total amount is fixed, I mean, very less. So finally we have to move to some other source of energy. So for that we are trying for renewable sources, nuclear, and all these things. The other thing is, if you look into this particular graph, around 2004, this was the situation for the OECD, developing countries, and transition economies. In case of developing country like India and other countries, if we see this demand of electricity is going to increase almost 3 times again by 2030. So this is alarming us to go for some other or alternate source of energy, like renewable source of energies or nuclear energy. This is the world total primary energy supply as per the IEA during 2007. The majority of the percentage is oil, coal, natural gas, and we are here, I mean, for renewable source of energy, and nuclear energy is only 4.9% at the world. And in India, if we talk, we are mainly using thermal, hydro, and renewable source, and nuclear is only 2%. So, but there are some benefits of nuclear energy that which are over this renewable and other source of energy. As I discussed, that fossil fuels are limited, and for renewable we have some limitations. Madam, So excuse me. nuclear is Uh, yes, Madam, please some speak in Hindi. okay. हाँ, Yes. तो भी Thank you. हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल्स तो खत्म होने वाले हैं, एंड फॉर अदर रिन्यूएबल सोर्स अगर हम यूज करते हैं तो उसमें ये हो जाएगा कि धीरे धीरे उसमें कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं, लाइक अगर विंड के लिए है तो हमें उस टाइप का एरिया एनवायरनमेंट चाहिए कि जहाँ पे हमें विंड एनर्जी इनफ मिल पाए. सेम वे थर्मल के लिए, सेम वे सोलर के लिए, वी नो ऑल द लिमिटेशंस. So nuclear is the one which we can have it also have a limit.
लिमिटेशन, बट इसमें लिमिटेशंस कम है कंपेयर टू अदर्स. सो दैट आई एम गोइंग टू स्पीक नाउ. द फर्स्ट थिंग, हम लोग आजकल जो मेजोरिटी हमारा प्रॉब्लम है वो है हम जो भी फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं उसमें जो हम लोग ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है, दैट इज रियली वेरी डेंजरस फॉर आवर कंट्री. और उसमें ये जो गैस है वो अ, हमारे लिए इतना हानिकारक है और बेसिकली जहरीला है, और उसकी वजह से हमारा बेसिक टोटल एनवायरनमेंट में डिस्टरबेंस. सो हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कंसेप्ट आया है कि इसको कैसे रिड्यूस किया जाए. एंड जो कंट्री उसको रिड्यूस करके उसका एमिशन रिड्यूस कर रहा है बाय एनी चांस, उनको क्रेडिट्स मिल रहे हैं. तो ये रियो ने डिक्लेयर किया था. अभी हम ये ग्रीन हाउस इमिशन की बात करें, ग्रीन हाउस गैस इमिशन की, तो इसमें अगर हम लिग्नाइट, कोल, ऑयल, गैस, सोलर पावर, आई मीन ऑल अदर हम एनर्जी के सोर्स अगर देखें तो उसमें रेट ऑफ इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आर वेरी वेरी हाई compared to the nuclear, which has almost no emission or very less emission of greenhouse gas. So this is the first thing which is actually telling us that we should explore this power. क्योंकि हमें अगर इस पृथ्वी पे रहना है, पृथ्वी को बचाना है, और मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसको अगर मिनिमाइज करना है तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को थोड़ा ट्राई करें अंडरस्टैंड करने की, एंड हम उससे एनर्जी जनरेट कर पाए. दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट इज एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कोई भी डेवलपमेंट है उसमें अगर हम प्रेजेंट जनरेशन को ध्यान में रख के अगर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं एंड वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ तरह से या तो बेनिफिशियल है तो इट्स फाइन, बट अगर वो फ्यूचर जनरेशन को कुछ उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लाइक हम अगर फॉसिल फ्यूल की बात करें तो हम अभी उसकी वजह से हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट फाइनली हम क्या कर रहे हैं कि उसका जो भी हमारे पास सोर्स है उसको हम कम कर रहे हैं, हम उसको खत्म कर रहे हैं. तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए शायद वो बचेगा नहीं या तो कम हो जाएगा. तो सेम वे हम बाकी चीजों में भी सोच सकते हैं. तो बेसिकली डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि उससे हमें आज की जनरेशन को तो बेनिफिट मिले ही मिले, बट उसके बेनिफिट नेक्स्ट कई जनरेशन को मिलना चाहिए. सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड ये डेवलपमेंट मेनली हमें कहाँ कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जैसे कि स्कूल्स में, फैक्ट्रीज में, ट्रांसपोर्टेशन में, डिजीज प्रिवेंशन में. क्योंकि अभी हम सब लोग कोरोना में हम देख रहे हैं कि हाँ, कोरोना के साथ आई मीन कोविड की सिचुएशन में हम लोग कितने भी आगे बढ़ गए, बट राइट नाउ होल वर्ल्ड इज हेल्पलेस. मतलब तो बहुत उसमें आई मीन कितना भी हमने मेडिकल में डेवलपमेंट कर लिया है फिर भी हम कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहे. तो इस टाइप की चीज़ें हैं, उसमें हमारा डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए. मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो, फूड अवेलेबिलिटी, फूड में भी हम धीरे धीरे जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, कल को हो सकता है कि सब कुछ है बट वाटर और फूड नहीं है नेक्स्ट जनरेशन के पास, या तो फूड है बट वो क्वालिटी अच्छा क्वालिटी वाला फूड नहीं है. तो वो सब चीज़ों का फिर मतलब नहीं रहेगा कोई भी डेवलपमेंट हो. सेम वे सीवेज ट्रीटमेंट. एंड so all this and development of this all infrastructure will basically require what? Electricity. because ये सब चीज़ के लिए हमको पहले चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी. इसके साथ साथ दूसरा है कि हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, पहले अगर हम हमारे दादा दादी या हमारे मतलब फोर्थ जनरेशन या उन लोगों की अगर बात करें तो उनके घरों में उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी. वो हार्डली लाइट्स भी आई मीन इलेक्ट्रिसिटी को वो बहुत रेयरली और हार्डली यूज करते थे फॉर वेरी लाइक रात को लाइट यूज कर लिया या ऐसे. जबकि हमारी लाइफ ऐसी है कि हम उठते ही हमें एसी चाहिए, लाइट चाहिए, फोन चाहिए, मतलब तो ऑल दिस एक्चुअली रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी. सो जैसे मैंने बताया कि और हो सकता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन तो इससे ज़्यादा गैजेट्स का यूज़ करें. सो डे बाय डे डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इंक्रीजिंग. और अभी जो रेट में हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उस रेट में इलेक्ट्रिसिटी पानी है तो सोलार, या अगर हम जो बाकी रिन्यूएबल सोर्स की बात कर रहे हैं कि विंड, वो सबकी एक लिमिटेशन है. और न्यूक्लियर एक ऐसा पावर है जिसमें कि हमें बहुत मतलब
एक आध रिएक्शन से भी हमें खूब एनर्जी मिल रही है, मैं आपको वो डिटेल में अभी बता रही हूँ. So this is another reason that we should, I mean, think of nuclear power, and this was there in the vision of Dr. Bhabha. Now, so come to the nuclear energy. Basically, what is the nuclear energy or nuclear power? हम बहुत ये सब बातें करते रहते हैं कि atomic power, nuclear reactor, but basically nuclear power we get from the nuclear reactor, and nuclear reactor actually releases the nuclear energy, and that energy is then converted into the electricity, like any other, I mean, in thermal energy also we convert it into the electric energy. In the same manner, nuclear energy can also be converted into the electrical energy. So let us see what is actually happening in the nuclear reaction. Nuclear energy is energy created from the nuclear reaction basically. So one can see, ये तो हम लोग सब स्कूल में ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक एटम होता है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग में मूव हो रहे होते हैं. तो दिस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विल डिसाइड द मैटर और एलिमेंट. तो हमने बचपन में केमिस्ट्री में पढ़ते थे, तब आवत कोष्ठक देखा है. तो उसमें हम लोग जनरली देखे हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑल अदर, आई मीन, एलिमेंट्स, दे आर बेसिकली मेड ऑफ एटम्स, and atoms is having nucleus. Abhi, by any chance, if this nucleus, number of neutrons or protons in the nucleus gets changed, I mean, it changed by any reaction, that is known as a nuclear reaction. So if you can change the number of neutron or proton inside the nucleus, so that is basically a nuclear reaction. Now this can be done by two possible processes. And this reaction actually, earlier Fermi was doing some experiment. At that time neutrons were in the discovery, and Fermi decided to do some experiments with neutron. So he was actually doing neutron radiation experiment on some of the known elements, and he was understanding, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि जब न्यूट्रॉन कोई भी एलिमेंट के ऊपर बम्बार्ड, आई मीन, पड़ता है या तो उसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो उससे क्या होता है, मतलब मटेरियल या तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी में क्या चेंज आता है. तो उसने देखा कि वो मटेरियल पहले तो वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाद में वो या तो वो न्यूट्रॉन को रिलीज करके कोई और मतलब कोई नया, मतलब गामा या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन रिलीज करके कोई नया एलिमेंट बनाता है. और कुछ जो भी कि यूरेनियम टाइप बड़े एलिमेंट थे, उसमें उन्होंने देखा कि वो एक्साइटेड, जैसे यहाँ पे फिशन प्रोसेस दिखाया गया है कि वन न्यूट्रॉन व्हेन interact with uranium 235, it converts it into uranium 236. but इसमें तो वो this is called metastable, और इसमें वो excited state में वो थोड़ी देर रह के बाद में वो तुरंत बेरियम एंड क्रिप्टन में डिवाइड हो जाता है, एंड अनदर, आई मीन, 3 more न्यूट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं. ये 3 न्यूट्रॉन्स अगेन यूरेनियम के साथ मतलब बम्बार्ड होके अगेन ये सेम प्रोसेस चलता है, एंड दिस वे एक चेन रिएक्शन बनता है. सो बेसिकली वहाँ से ये कंसेप्ट आया, और बाद में इस फिशन प्रोसेस पे ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए गए, लाइक दिस. You can see the structure of the nuclear reactor used to be like this, and in this case actually the large atom, when neutron is bombarded on this large atom, it converts into a 2 small atom, and it releases neutron, and that neutron is nothing but the energy, because these are highly energetic neutrons, which energy can be used, that I am explaining you later in the next slide, and from that we can get the electricity directly. The other method is the fusion method. हमने ये बचपन में भी पढ़ा ही था कि 2 प्रोसेस हैं, परमाणु, आई मीन अणु का विखंडन और संलयन. तो जो पहले हमने फिशन बात किया, दैट इज विखंडन है, और जो संलयन है वो उससे टोटली अपोजिट, आई मीन रिवर्स प्रोसेस है. उसमें क्या होता है कि 2 लाइट एलिमेंट जब फ्यूज होते हैं या तो एक दूसरे के साथ संलयन करते हैं, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा एक नया एलिमेंट बनाता है, और बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 14 MeV न्यूट्रॉन रिलीज करता है. और
अगर इसको सिंप्लीफाइड वे में समझना है तो हमारे सन में जो प्रोसेस हो रही है, हम डे बाय डे हमें बहुत सारी एनर्जी सन से मिल रही है, इवन दो इट इज टू फार फ्रॉम अस। सन में यही प्रोसेस होता है कि दो हाइड्रोजन एटम मिलके हीलियम बनाता है, एंड देन वो प्रोसेस कंटिन्यूअसली इन ए चेन रिएक्शन वे में चलता रहता है, एंड वो जो है एनर्जेटिक न्यूट्रॉन रिलीज करते हैं, वो एनर्जी का हम यहाँ अर्थ पे भी इतना यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली जो सन में जो प्रोसेस होता है उसको न्यूक्लियर संलयन या तो फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन रिएक्टर के लिए भी दिस इज आल्सो दिस कंसेप्ट इज आल्सो डेवलप्ड, एंड यू कैन सी द रिएक्टर हियर। उसका भी मैं डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि हम इसमें किस तरीके से पृथ्वी पर एक आर्टिफिशियल सन डेवलप, सूर्य का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। तो हम क्या करते हैं कि दो स्मॉल एलिमेंट को फ्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ, और जब वो फ्यूज होके जब एक लार्ज एलिमेंट बनाता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को भी हम बाद में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सो ये दोनों कंसेप्ट पे दोनों ही टाइप के रिएक्टर्स दुनिया में बहुत सारी जगह में बन चुके हैं। कुछ तो वर्किंग है एंड कुछ एक्सपेरिमेंट से बन रहे हैं। नाउ वी विल सी, बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो हमने देखा दोनों ही प्रोसेस फिशन एंड फ्यूजन, ये दोनों में जो फिजन प्रोसेस है उसमें जब ये प्रोसेस हो जाता है तो उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो है यूरेनियम। और यूरेनियम फिजन प्रोसेस के बाद उसका जो बाय प्रोडक्ट है, मतलब जो हमें बाद में जो मिलता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो उससे एक रेडिएशन का खतरा है जो कि बहुत अच्छे से अभी तो विथ एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी उसको हैंडल किया जा रहा है, बट स्टिल बहुत सालों से एक मिथ वही चल रहा है कि फिशन इज नॉट सेफ। एंड इस दुनिया में बहुत सारे रिएक्टर्स वर्किंग कंडीशन में है, उसमें से ऑलमोस्ट 400 रिएक्टर्स आर देयर, उसमें से 3-4 एक्सीडेंट्स हुए हैं, एंड दैट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट और ह्यूमन एरर। बट फिर भी वो थोड़ा इस पर्टिकुलर प्रोसेस में लोगों को एक डर बैठ गया है कि इट इज नॉट सेफ, एंड रेडियो एक्टिव जो है वो रेडियो एक्टिविटी ह्यूमन के लिए और एनवायरमेंट के लिए सेफ नहीं है। तो ये जो दो ड्रॉबैक है उसके सामने अगर हम फ्यूजन की बात करें तो जो फ्यूजन एनर्जी का कंसेप्ट है या तो फ्यूजन टेक्नोलॉजी है, वो रियली क्लीन ग्रीन एनर्जी है, एंड ये बहुत ही सेफ है क्योंकि इसमें जो हम फ्यूल यूज करते हैं, जैसे यहाँ हम यूरेनियम यूज करते थे, यहाँ का जो फ्यूल है वो है सी वाटर। हम नॉर्मल सी वाटर ही यूज करते हैं, और उसका जो बाय प्रोडक्ट, मतलब बाय प्रोडक्ट तो क्या इसमें, मतलब जो दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिक्स होके हीलियम बनाता है, बाद में लिथियम, एंड तो ये जो एक चेन रिएक्शन चलता है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेडियो एक्टिविटी का इश्यू नहीं है, तो ये सेफ है। दूसरा इसमें एक्सीडेंट के कोई चांस ही नहीं है क्योंकि ये कुछ रेडिएट भी नहीं करता है, और इसमें ये जो प्रोसेस है वो प्योरली कंट्रोल्ड वे में होता है। इट इज प्योरली अंडर द कंट्रोल इन द ह्यूमन। सो ये प्लस अबाउ ऑल दिस जो एनर्जी रिलीज है एक रिएक्शन से, ऑलमोस्ट हमने यहाँ जैसे देखा कि 14 MeV एनर्जी रिलीज होता है। तो जैसे तो फिर अगर हम बहुत सारा रिएक्शन मतलब कर पाए, अगर सस्टेन कर पाए इस रिएक्शन को रिएक्टर के अंदर, तो हमें कितना मतलब हमारी जो एनर्जी का आउटकम होगा वो मेगावाट्स में होगा, एंड दैट जो हमें हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको वो बहुत आसानी से फुलफिल कर पाएगा, जो कि बाकी कोई सोर्स में अभी तक इतनी सारी एनर्जी नहीं मिलती है। मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें फोसिल फ्यूल के साथ प्लस एनी अदर रिन्यूएबल सोर्स के साथ, तो इतना ज्यादा आउटपुट पॉसिबल नहीं है। बट देयर आर ऑल्सो सम लिमिटेशन दैट वी विल अंडरस्टैंड, बट ऑलमोस्ट दुनिया के 70% साइंटिफिक कम्युनिटी जो भी है वो इसमें लगी हुई है कि इस फ्यूजन रिएक्टर को और फ्यूजन प्रोसेस को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए और इसमें से किस तरीके से एनर्जी को लिया जाए। अगर हम इसमें सक्सेस हो पाए तो वो हमारे लिए मतलब हमारे आने वाले, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट है कि नॉट ओनली दिस जनरेशन बट ऑल नेक्स्ट कमिंग जनरेशन को भी उसका बेनिफिट हो एंड वो सबके लिए सेफ हो, तो वो फ्यूजन ही अभी तो लग रहा है। सो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड साइंटिफिक पॉपुलेशन आर वर्किंग ऑन दैट। नाउ इफ वी सी
एज आई मेंशन, हम अगर रिएक्टर का थोड़ा स्टडी करें तो दोनों रिएक्टर की डिटेल में थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जो फिजन रिएक्टर होता है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप का एक प्लांट होता है, उसके अंदर एक वेसल के अंदर यूरेनियम के रोड रख आई मीन यूरेनियम का सो बेसिकली इसका फ्यूल हम लोग यूरेनियम यूज करते हैं। तो फ्यूल रोड इस तरह से होते हैं और उसमें उसका जो जैसे बताया वैसे न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होते ही दो मतलब एलिमेंट उसमें से जनरेट होते हैं, दैट बेरियम एंड क्रिप्टॉन जो हमने यहाँ प्रोसेस बताया था, वो प्रोसेस इसमें किया जाता है। सो बेसिकली जब वो न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं तो वन न्यूट्रॉन विल रिलीज थ्री न्यूट्रॉन, उस वो थ्री न्यूट्रॉन्स भी अगेन रिएक्शन करके बाद में अगेन मतलब तो दिस वे वो एक चेन रिएक्शन बन जाता है। बट वो चेन रिएक्शन भी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स तो इसमें कंट्रोल रोड्स का यूज होता है। और कंट्रोल रोड्स क्या करते हैं कि हम कंट्रोल रोड को कंट्रोल करके चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में हम एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली एंड दूसरा इसमें वाटर यूज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी से जब बम्बार्ड या तो उसके साथ यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट होते हैं तभी ये प्रोसेस पॉसिबल है। तो इसमें वो न्यूट्रॉन की एनर्जी को मॉडरेट करने के लिए या तो उसको कंट्रोल करने के लिए विद दिस कंट्रोल रोड वाटर भी यूज होता है, एंड वाटर इज नोन एज ए मॉडरेटर। एंड ये वाटर जो न्यूट्रॉन हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन है वो इसमें जब मॉडरेट होते हैं तो वो अपनी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी मतलब वो स्लो डाउन होते हैं, धीरे पड़ जाते हैं, तो वो अपनी एनर्जी एक्चुअली वो पानी को दे देते हैं, वाटर को दे देते हैं, एंड दैट वाटर विल बिकम अ स्टीम। तो वो स्टीम को बाद में प्रेशराइज्ड इस वेसल में लेके वो स्टीम से टरबाइन चला के बाद में उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हम उसको यूज कर सकते हैं। और जो हॉट वाटर है उसको कूलिंग टावर में ले जाके उसको कूल करके अगेन रीयूज कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फिशन न्यूक्लियर। एंड इस कंसेप्ट से फिशन प्रोसेस करके इंडिया में अभी almost at 7 places this kind of fusion reactors are working, and you can see this green color in this plot, I mean our India's map. You can see these green colors reactors that are already working under operation, and they are generating this amount of power. And the pink color are under construction, and very soon we are going to get power from it. The main requirement here is we require uranium or basically fuel for this, as well as water, क्योंकि इसमें वाटर जैसे आपने देखा हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए उसी वजह से आप देख सकते हैं कि ये कोस्टल एरियाज में ज़्यादा बनाए गए हैं, और जो कोस्टल एरिया में नहीं है जैसे कि जो मतलब कहीं यहाँ बीच में है वहाँ भी इनफ वाटर का सोर्स चाहिए, तो तभी ये फिशन रिएक्टर प्रोसेस आई मीन वर्क कर सकता है। सो दिस इज द रिगार्डिंग फिशन रिएक्टर। एंड अगर हम फ्यूजन रिएक्टर की बात करें तो देर आर मेनी कंसेप्ट, बट द मोस्ट अगर कोई सक्सेसफुल या तो जो पॉसिबल है हमारे लिए, बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हमें एक आर्टिफिशियल सन डेवलप करना है पृथ्वी पे, हम एक सूरज बना रहे हैं इस अर्थ पे, तो अगर वो सन को बनाने का काम इट इज़ नॉट दैट इजी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सूर्य है उसका टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें उतना टेम्परेचर अगर हमें अर्थ पे कोई चीज़ में डेवलप करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा कोई वेसल ही नहीं है जिसमें हम उसको होल्ड कर पाए, मतलब कोई भी मटेरियल को उतने टेम्परेचर पे वो पिघल जाता है या तो वो मेल्ट हो जाता है, तो हम ये प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए एक कंसेप्ट डेवलप किया गया कि ये जो जब ये हम प्लाज्मा बेसिकली उसको जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो प्लाज्मा डेवलप होता है, और ये जो प्लाज्मा है वो उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इट इज इन ए क्वाजी स्टेबल स्टेट, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक्चुअली हम कोई भी मैटर है उसके 3 पॉसिबल मतलब हम लोग सॉलिड, लिक्विड
एंड गैसेस फॉर्म पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाजी न्यूट्रल पार्टिकल, आई मीन सो बेसिकली वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं या तो आयोनाइज पार्टिकल हैं, वो सबको मैग्नेटिक फील्ड से एक हम इस टाइप का पिंजरा बना रहे हैं जिसमें हम हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, और इस फील्ड की इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि वो प्लाज्मा जो है वो फील्ड की वजह से अंदर कोर में ही फिक्स रहता है और वो बाहर वेसल को टच ही नहीं कर पाता है। तो बेसिकली वो प्लाज्मा जो है वो कोर में ही रहेगा, टच नहीं करेगा। तो ये चीज का हमें सॉल्यूशन मिल गया है कि हम इतना टेम्परेचर वाला प्लाज्मा जनरेट कर पाएंगे। बट अभी जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है या तो फाइट चल रही है कि इस चीज को समझने के लिए, या पूरे मैंने जैसे बताया कि वर्ल्ड की 70% पॉपुलेशन जो साइंटिफिक पॉपुलेशन है वो इसके लिए लगी हुई है, वो ये है कि इसमें हमें जो डेंसिटी है वो भी बहुत, मतलब सन में जो टेम्परेचर डेंसिटी है वो मीट करना है, एंड उस चीज को सस्टेन करना है। मतलब हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये चीज को होल्ड करना इज रियली डिफिकल्ट। उस चीज को अभी मैं आगे बताऊंगी कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे रिएक्टर्स भी बने हैं जिस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो बेसिकली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्लाज्मा को हम लोग समझ रहे हैं, प्लाज्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बार हम प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेंगे तो हमारे लिए वो भी बहुत बेनिफिट होगा, और उसकी वजह से हम और टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर पा रहे हैं। बट सो बेसिकली दिस इज द कंस्ट्रेंट राइट नाउ। बट मैं आगे बताऊंगी कि इसके लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशंस बन रहे हैं। बट इसमें जैसे हम बात करें तो फ्यूल जो होता है वो सी वाटर होता है। तो बेसिकली प्लाज्मा और सन बनाने के लिए हमको जो सी वाटर में हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं, मतलब अगर जैसे मैंने बताया कि एटम में अगर नाइट्रोजन सॉरी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का नंबर अगर चेंज हो जाता है तो वो आइसोटॉप बन जाते हैं, या तो उसके थ्रू आपका प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस पॉसिबल है, या तो डीके पॉसिबल है। मतलब एक्साइटेड स्टेट में कोई भी पार्टी अगर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में एलिमेंट चला जाता है, उसमें से वो सॉरी वो एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और उसमें से वो जब नॉर्मल स्टेट में आता है तो वो कुछ रिलीज करता है। तो ये जो प्रोसेस है, और उसके थ्रू मतलब जैसे हाइड्रोजन में अगर मैं एक और प्रोटॉन ऐड कर देंगे तो वो उसका आइसोटॉप बन जाएगा। मतलब एटॉमिक नंबर एंड मतलब ये चीजें हमने अगेन बचपन में पढ़ी हैं। तो जो हाइड्रोजन के दो आइसोटॉप्स हैं, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम, वो हम लोग यहाँ एज ए फ्यूल यूज करते हैं, और वो हम सी वाटर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ट्रिशियम तो अलग से बना भी सकते हैं, और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम ट्रिशियम भी जनरेट करते हैं इन दिस प्रोसेस ओनली। तो अगेन ये प्रोसेस भी सेल्फ सस्टेन है, एंड इसमें क्या है कि ड्यूटेरियम ट्रिशियम को बहुत हाई टेम्परेचर पे मतलब फ्यूज किया जाता है। अभी दूसरा ये है कि दोनों ही पॉजिटिव, दोनों पार्टिकल का मतलब जनरली हम जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं, मतलब रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते, बिकॉज उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो हमें उस फोर्स के अगेंस्ट लड़ना पड़ता है, तब जाके वो दोनों फ्यूज होंगे, और जब वो दोनों फ्यूज होंगे तब जाके हमें 14 MeV एनर्जी रिलीज होगी। या तो हमारी जो हमने यहाँ पे जो प्रोसेस देखी थी कि जब वो दोनों लाइटर एलिमेंट फ्यूज होंगे उसमें से एक हेवियर एलिमेंट बनेगा, दैट इज हीलियम, बट इट रिलीजेस दिस मच ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर एनर्जी पाने के लिए हमें उनको फ्यूज करना पड़ेगा, और जो कि नेचर से टोटली ऑपोजिट है, क्योंकि दोनों इक्वली चार्ज पार्टिकल हैं तो वो नहीं होंगे। इसीलिए हमें इस प्लाज्मा को बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है, और उसके लिए स्पेशली हीटिंग एंड करंट ड्राइव यूज किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत हाई टेम्परेचर एंड उसमें वैक्यूम भी रखा जाता है बहुत हाई। तो बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई वैक्यूम, मतलब वो पर्टिकुलर जो सन की टेम्परेचर एंड डेंसिटी जब हम मीट कर पाते हैं, तो ये जो एक मैग्नेटिक चुंबकीय एनवायरनमेंट में ये जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया होता है उसके अंदर ये प्रोसेस होके प्लाज्मा जनरेट होता है। और प्लाज्मा अगेन एक डोनट शेप में, जैसे मैंने बताया कि वो बिकॉज ऑफ फील्ड ये साइड की वॉल को टच किए बिना
अंदर जनरेट प्लाज्मा बनता है। और ये प्लाज्मा जब जो न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो ये वॉल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल हैं, तो उनका उनके ऊपर ये फील्ड का इफेक्ट नहीं होता इतना ज्यादा। सो दैट्स वाई वो तो यहाँ जो वॉल है वो स्पेशली इस तरीके से डेवलप की जाती है कि वो लिथियम से बनाई जाती है, और उसमें जब ये न्यूट्रॉन आएंगे तो वो ट्रिशियम बनाते हैं और उससे हम ट्रिशियम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, और वही ट्रिशियम हम अगेन प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। सो हियर दिस वे वी आर ट्राइंग टू सस्टेन और गेट अवर फ्यूअल फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ। एंड इसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो पोलोइडली एंड टोरोइडली, मतलब दोनों पोल की साइड से, और मतलब उसको होल्ड करने के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में जब देंगे तभी हमको डोनट शेप मिलता है। तो बाद में ये जो न्यूट्रॉन की एनर्जी है वो अगेन, जैसे फ्यूजन रिएक्टर में बताया था कि हाईली एनर्जेटिक जो न्यूट्रॉन की एनर्जी है उसको अगेन कन्वर्ट किया जाता है पावर कन्वर्जन सिस्टम के थ्रू, एंड बाद में उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। बट यहाँ जैसे मैंने बताया कि फ्यूजन में फिशन से जो रेट है वो बहुत हाई है, तो इसलिए हमें जो एनर्जी मिलती है वो बहुत हाई होती है। ओनली थिंग अभी इसको हमें लॉन्ग टाइम के लिए अगर सस्टेन करना है तो उसके लिए सब रिसर्च चल रहा है। फ्यूजन रिएक्टर्स दुनिया में बहुत सारे देश ने बनाए हैं, हमारे इंडिया में भी। मैं जिस इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च में ये रिएक्टर्स डेवलप किए गए हैं। सबसे पहले एक आदित्य रिएक्टर बनाया गया था जिसको प्योरली एक्सपेरिमेंटल पर्पज से बनाया गया था, और उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, प्लाज्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बहुत सारा प्लाज्मा को कैसे होल्ड करना है, कैसे प्लाज्मा जनरेट करना है। सो बेसिकली कुछ भी हमारा नया इन्वेंशन है तो हम पहले उसको एक एक्सपेरिमेंटल स्केल पे करते हैं। उस तरीके से हमने आदित्य में भी एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत सी चीजें अंडरस्टैंड की, एंड बेस्ड ऑन द knowledge gained from the Aditya, superconducting solid state tokamak SST1 was developed in IPR। एंड जो मैंने अभी ये मैग्नेटिक स्ट्रक्चर की बात की थी, इस पर्टिकुलर वे से जो प्लाज्मा जनरेट किया जाता है वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, और बेसिकली द रिएक्टर जो है उसको टोकामाक बोला जाता है। तो इसीलिए इसको भी सुपर सॉलिड स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामाक नाम दिया गया है। एंड ये भी सेम तरीके से हम लोग भी इसमें ट्राई कर रहे हैं कि हम फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट करके एनर्जी जनरेट कर पाए, बट दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स। इसका कमर्शियल पार्ट लेटर ऑन बनेगा, अभी तो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो SST1 का एक्सपीरियंस था उसके बेस पे अभी जैसे मैंने बताया कि पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन इसमें लगा हुआ है कि इसको कैसे बनाया, मतलब सक्सेसफुल किया जाए फ्यूजन प्रोसेस को। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक वर्ल्ड जायंट प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। वो ईटर के नाम से ये एक जॉइंट वेंचर है। जैसे पुलकेश ने शुरू में आप लोगों को बताया कि ईटर जो है उसमें बेसिकली 7 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, और जो 7 कंट्री मिलके, मतलब वो 7 कंट्री में मेन तो चाइना, जापान, इंडिया, कोरिया, रशिया, यूरोप एंड यूएस, ये मेजर 7 कंट्री हैं। इन लोगों ने अपना कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, और इसमें कंट्रीब्यूशन भी बेसिकली हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी या ऐसे नहीं दे रहे हैं। जिस कंट्री में जो एक्सपर्टीज है वो हम डेवलप करके हमारी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग वहाँ पे ईटर को बनाने के लिए हम डायरेक्टली वो पर्टिकुलर सिस्टम या तो पार्ट या तो मतलब वो पर्टिकुलर उसको चलाने के लिए, मतलब जो भी सिस्टम या पार्ट चाहिए वो इंडिया और अदर कंट्रीज डेवलप कर रहे हैं अपने यहाँ, और फिर वहाँ डिलीवर कर रहे हैं। और एक्चुअली ये प्रोजेक्ट यूरोप का इसमें मेजर पार्ट है। तो यूरोप साउथर्न ऑफ फ्रांस में कैड्राश करके एक जगह है, वहाँ पे ये रिएक्टर बन रहा है। ये रिएक्टर का साइज यहाँ आप देख सकते हो कि एक ह्यूमन दिखाया गया है। सो यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ द रिएक्टर। एंड इसके जो खाली ये वेसल है ना, उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है इट इज 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द एफिल टावर में जो स्टील यूज हुआ है। तो बेसिकली ये बहुत ही जायंट रिएक्टर बन रहा है।
इसमें 2-3 पर्पस थे इसको बनाने के। एक तो अगर इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करना है तो कोई एक कंट्री के लिए ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये बहुत कॉस्टली है। दूसरा ये था कि सबका हर एक कंट्री ने अपने अपने रिएक्टर बनाए हैं, बट हर एक कंट्री का अपना एक एक्सपर्टीज है, नॉट इन ऑल सेंस बट इन सम पर्टिकुलर। सो अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से अगर कोई इसमें कंट्रीब्यूट कर पाए तो वो सिस्टम बहुत ही अच्छा और बेटर बना पाएगा। एंड दिस मतलब सो विथ दिस गोल एक्चुअली, एंड ये बहुत लॉन्ग टर्म है, तो विथ दिस गोल सभी कंट्री ने डिसाइड किया कि दे कैन वर्क टुगेदर एंड डेवलप समथिंग फॉर द फ्यूजन रिएक्शन। एंड इसका मेन गोल ये है कि इसका जो इनपुट है वो उससे आउटपुट 10 टाइम्स ज़्यादा मिले, वो गेन करना है। तो बेसिकली अभी ये प्लान है कि 50 मेगावाट अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो 500 मेगावाट एनर्जी आउट मिलेगा। बट अगेन ये प्योरली एक्सपेरिमेंट पर्पज से है। एक बार इसमें सक्सेस मिल गया तो प्लाज्मा इसमें जो जनरेट हो रहा है उसको हम सस्टेन कर पाए तो इसके बाद हर एक कंट्री अपना अपना डेमो मतलब अपना एक फ्यूजन रिएक्टर बनाएगा और उसके बेसिस पे कमर्शियल रिएक्टर्स बनेंगे। यू कैन सी पिंक कलर हियर, दिस इज द प्लाज्मा। तो बेसिकली जब ये फुल बन जाएगा फ्यूजन रिएक्टर तब वो इस तरीके से कुछ दिखेगा, और उसमें जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होंगे तो इस टाइप से पिंक कलर के जो दिख रहा है वो प्लाज्मा जनरेट होगा। उस प्लाज्मा को बाद में हम पूरा अंडरस्टैंड करके उसमें से ये कैसे एनर्जी कन्वर्ट करना है दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। यू कैन सी हियर द पर्सन एंड द साइज ऑफ दिस, तो यू कैन इमेजिन द साइज। नाउ this project has I mean India has taken part in this project in 2006, so almost I mean 14 years we have crossed, and इसमें से हम लोग almost 9 to 10 सिस्टम बना के इंडिया वहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। उसमें से ये जो इसका जो बाहर का ये जो लेयर देख रहे हैं वो क्रायोस्टेट बोला जाता है, जो कि उसको टेम्परेचर को मतलब बनाए रखता है। मतलब इसमें ऐसा है कि जो मैग्नेट है उसको चलाने मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और बेसिकली मैग्नेट के लिए हमें बहुत हाई करंट चाहिए और वो हाई करंट के लिए हमें सुपर कंडक्टर्स चाहिए। एंड हम जानते हैं कि सुपर कंडक्टर बहुत लो टेम्परेचर पे काम करता है, और अंदर जो प्लाज्मा है उसका टेम्परेचर अराउंड जो सन का टेम्परेचर है उतना आता है। तो यहाँ जो दो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये भी एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है कि हमको उसको कैसे हम मेंटेन करें ये दोनों टेम्परेचर को। और इसको ये जो बाहरी जो आप क्रायोस्टेट देख रहे हैं वो इंडिया ने बना के ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है, और जो यहाँ वेसल है उसके अंदर भी ये जो मैंने बताया कि न्यूट्रॉन्स जो है वो वेसल की वॉल के साथ इंटरेक्ट होते हैं प्लाज्मा में से, तो उसको वेसल की वॉल को एक तो अंदर से स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है सो दैट कि हम लिथियम से ट्रिशियम डेवलप कर पाए, और दूसरा है कि हम बाहर वो न्यूट्रॉन ना आ जाए इसलिए अंदर एक शील्डिंग यूज करते हैं। तो वो शील्डिंग जो है वो भी इंडिया ने बना के डिलीवर किया है। इसके सिवाय पावर सप्लाईज जो हीटिंग प्रोसेस था जो मैंने बताया उसमें से कुछ एक 2-3 हीटिंग सिस्टम भी इंडिया बना रहा है। फिर इसको जो जब ये ऑपरेशन में जाएगा तो इसमें जैसे जो प्लाज्मा जनरेट होगा उस प्लाज्मा के ऊपर अगेन कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करेंगे। तो वो पार्ट को हम डायग्नोस्टिक्स बोलते हैं। वो डायग्नोस्टिक्स भी हमें भी इंडिया मतलब 3-4 टाइप के डायग्नोस्टिक्स इंडिया करने वाला है। सो दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन इन द ईटर, and we are very hopeful that if this technology will succeed we will get lots of power, and based on that our problem of energy that will be solved immediately. For more information you can see ITER site where you can see the collaboration of this is really a giant project with so many countries, and recently Canada has also joined, and Australia is also trying. So with all these countries with different time scale of the countries working together is again a challenging task, and so this project is in all sense if we talk like it contains science and engineering both, so we require all different kinds of science as well as full engineering. We cannot think of any branch which is not involved in this work.
So all mechanical, chemical, electrical, electronics, all different kinds of engineering is required in this particular development. So this is actually a very in recent time, this is a giant collaborative project in which all different kinds of science and technology are involved, and people are really hoping to see some progress, I mean some success in this particular project. So it is now under the belief that before nuclear fusion, this was the situation, and if we get the nuclear fusion, this will be the situation, because as मैंने अभी जैसे बताया, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि उससे मतलब ये नीट, क्लीन एंड ग्रीन एंड टोटली सेफ एनर्जी है। इसमें ना तो रेडिएशन का प्रॉब्लम है, ना कोई और प्रॉब्लम है, ना ये जो ग्रीन हाउस गैस रिलीज करता है। तो बेसिकली ये बहुत ही सेफ, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का सोर्स है। And because of this, now if we want to decide that whether we will go for the nuclear power or sustainable source, is it a sustainable source for us? So from all these things we have to decide that yes, we can go for it or not. But so in addition to that, as I mentioned that वो green house effect भी मतलब इसकी वजह से हम global warming को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। दूसरा है कि land use, अगर हम नॉर्मली अगर हम बाकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की बात करते हैं, तो उसमें जो लैंड रिक्वायरमेंट है उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जो लैंड का रिक्वायरमेंट है वो रियली बहुत बहुत कम है। और हमें पता है कि हमारा जैसे वर्ल्ड का पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रहा है, विद इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हमें लैंड वाला मतलब लैंड का इशू भी आने ही वाला है। जैसे अभी से हम तो सुन रहे हैं कि लोग तो मून पे अपना कुछ लैंड बुक कर रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम बाद में मून पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो ये सब बातें हो रही है, बट एक्चुअली इट इज सीरियसली बाय 2050 रियली वहाँ आई मीन अर्थ पे हमें लैंड का भी एक इश्यू आने वाला है। तो उसको देखते हुए भी अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को देखें तो उसके लिए जो लैंड रिक्वायरमेंट है दैट इज रियली वेरी वेरी लेस कंपेयर टू एनी अदर। फिर वेस्ट डिस्पोजल, जो हम लोग जनरली रेडिएशन की बात करते हैं, जब भी न्यूक्लियर एनर्जी का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं नहीं ये तो रेडिएशन इसमें होता है, ये ह्यूमन और एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बट एक्चुअली अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करें तो हम जो डेली लाइफ में जो पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहे हैं, उससे जो मतलब गैसेस निकल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है एज कम्पेयर टू द रेडिएशन विच वी आर फेसिंग थ्रू दिस न्यूक्लियर। एंड इसका जो हम लोग रेडिएशन मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इसके बाय प्रोडक्ट में निकलते हैं, अगर फिशन रिएक्टर की बात करें तो वो एलिमेंट्स को अभी तो विद डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी हमने इतना अच्छा शील्डिंग और वो सब टेक्नोलॉजी डेवलप की है, रिमोट हैंडलिंग टेक्नोलॉजी, की हम जो रेडियो एक्टिव मटेरियल निकल रहा है उसको बहुत सेफली हम उसको कहीं दूर ग्राउंड में गाड़ सकते हैं और उसकी प्रॉपर शील्डिंग बना सकते हैं, दैट टू बाय रिमोट हैंडलिंग। सो वहाँ कहीं पे भी एनवायरनमेंट और ह्यूमन को एक्सेस नहीं होता है, सो वी कैन सेव इट। जबकि ये जो गैसेस रिलीज हो रहे हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो उससे बेसिकली हम ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ा ही रहे। तो इफ वी कैन मतलब और उसका कोई हमारे पास डिस्पोजल का ऑप्शन ही नहीं है, सो दैट वे दिस इज बेटर। फिर वो प्रिजर्वेशन करता है फॉसिल फ्यूल का। अगर हम यूरेनियम और नॉर्मल मतलब जैसे फ्यूजन और फिशन की तरफ बढ़ते हैं तो उससे हमें जो एनर्जी मिल जाएगा उसकी वजह से हमारे फॉसिल फ्यूल जो कि खत्म होने को आए हैं वो थोड़े बच जाएंगे, तो वी विल बी एबल टू प्रिजर्व सम मोर स्टॉक फॉर अवर नेक्स्ट जनरेशन फॉर देयर एक्चुअल नीड। मतलब जहाँ उसका एक्चुअल नीड है, जहाँ की हम उसको रिप्लेस ही नहीं कर सकते, वहाँ वो हमारा चालू रहेगा। देन अगर हम इसके फ्यूल की बात करते हैं तो हमारे पास जो यूरेनियम का जो अभी का जो स्टॉक है या तो वो 250 ईयर्स तक हम यूज कर पाए उतना सफिशिएंट है। और अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम इंडिया की जैसे बात करें तो हमारे पास थोरियम बहुत ज्यादा है, यूरेनियम तो हमारे पास कम है। तो हमारे यहाँ एक्चुअली डॉक्टर भाभा का एक प्रोजेक्शन था या तो उनका एक सपना था कि उन्होंने 3 स्टेज पावर प्लांट सोचा था, और इसमें ये था कि यूरेनियम से प्लूटोनियम बनेगा और प्लूटोनियम से बाद में मतलब 3 स्टेज में, तो एक स्टेज से जो आउटपुट आएगा प्लूटोनियम उसको सेकेंड स्टेज में इनपुट करेंगे, और सेकेंड स्टेज को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। तो जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसमें प्लूटोनियम को और बढ़ाएंगे, और बाद में जो थर्ड स्टेज है उसमें थोरियम के साथ उसको
मतलब जो, क्योंकि हमारे पास थोरियम ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जो थोरियम का टोटल अमाउंट है उसका 25% तो खाली इंडिया के पास है। तो एंड हमारा अभी तक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो इंडिया ने जो डेवलपमेंट किया है वो रियली बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया है। और हम अगर थोरियम को भी यूज कर पाए, प्लस हम अगर यूरेनियम और प्लूटोनियम को रिसाइकल कर पाए, तो हमारे पास इतना फ्यूल है कि नेक्स्ट 10,000 ईयर्स तक हमें कोई कमी नहीं पड़ेगी। और अगर हम फ्यूजन की बात करते हैं तो सी वाटर तो हमारे पास इनफ है कि हमें उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तो इन दैट वे ये जो अगर हम ये एनर्जी सोर्स की बात करें तो वो लॉन्ग लास्टिंग है। एनवायरमेंटल कॉस्ट, ऑलवेज ये बातें होती है कि ये बहुत कॉस्टली है फ्यूजन रिएक्टर्स बनाना, या उसको ऑपरेट करना, या तो उसको मेंटेन करना। बट मैं बोलूंगी कि जो हम एनवायरमेंट के टर्म्स में अगर इन चीजों को जनरली, जैसे ईटर है तो ईटर का लाइफ स्पान है 20 ईयर्स का। उसको कंस्ट्रक्शन में 10 ईयर्स लग जाएंगे, बट बाद में वो 20 ईयर्स तक ऑपरेट होने वाला है। अगर इस तरीके से हम इतने लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई रिएक्टर बना रहे हैं, उसका ऑपरेशन एंड इंक्लूडिंग इस डिकमीशनिंग, अगर हम पूरा उसका जो एक कॉस्ट निकालें, और हम जो बाकी चीजों में जो हम कॉस्ट डाल रहे हैं और उससे हमें जो मतलब आउटपुट है, तो इसके कंपैरिजन में, वो आउटपुट के कंपैरिजन में ये कॉस्ट वर्थ है। तो एक्चुअली अगर उस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत चीप है। ठीक है, उसको बनाने में और ऑपरेट करने में जो टाइम और कॉस्ट लगता है, सिर्फ वो नहीं देख के अगर हम उसका पूरा लाइफ स्पान और आउटकम देखें तो रियली ये प्रोसेस चीप है। एंड अभी जैसे मैंने पहले बताया कि ईटर में भी बहुत सारी चीजों में, जो फुकुशिमा या ऐसे कुछ कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी मैंने बताया था कि जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, एंड उसकी वजह से हम लोग डरने लगे हैं कि इसमें एनवायरमेंटल और पर्सनल सेफ्टी नहीं है। वो बेसिकली अगर हम देखें तो इसलिए हुए थे कि जनरली या तो कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से, जैसे कि जापान में तो अर्थक्वेक हो गया था, सुनामी वाली सिचुएशन थी, और कहीं पे तो ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है। बट फिर भी, और इसका एक प्रॉब्लम है कि एक बार इसमें एक्सीडेंट होता है तो बॉम्ब की तरह मतलब ब्लास्ट होके पूरा एंड पूरा रेडियो एक्टिविटी फैल जाता है। तो इससे ऑलमोस्ट दुनिया पूरी डरी हुई है। बट एक्चुअली विद एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, अभी ये हो रहा है कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टेक्निक्स हैं। हम लोग बहुत कुछ तो ऑटो मोड में कर रहे हैं, बहुत हम लोग एडवांस जा रहे हैं। तो हम बेसिकली वो सब देख के कि जिस तरीके से हम अभी हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ा है, हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड टोटल अगर रेशियो देखें तो जैसे मैंने बताया कि अराउंड 400 रिएक्टर्स में से 3 और 4 एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो इतना तो मतलब अगर कोल या ऑयल की हम मील में देखें या मतलब वहां कहीं पे देखें तो भी, और जो ह्यूमन यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं उसके कंपैरिजन में, हम जो ये पॉल्यूशन से अफेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन को, या तो जो कोल और ऑयल बनाने के लिए या तो उसके जो मील्स में काम कर रहे हैं उनके साथ भी जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वो रेशियो निकालेंगे तो अगेन ये कमी है। तो इन दैट केस, प्लस डे बाय डे टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल बन रही है कि हम बहुत सी चीजों में रोबोटिक्स ले आ रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट ह्यूमन और ह्यूमन का एक्सेस ही नहीं है। और ईटर में ये चीज का बहुत ध्यान रखा गया है कि इसमें मैक्सिमम, इसमें हर एक मेंटेनेंस और उसका इंस्टॉलेशन और एवरीथिंग रिमोट रोबोटली करने वाले हैं। तो मोस्टली मतलब वो चीजों का इश्यू कम ही आएगा। एक एक जो ड्रॉबैक था वो ये था कि मतलब इससे ये टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ पैरेलल में हर कंट्री अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लगे हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं, यूएस ने जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट, एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट किया था। और उसकी वजह से वो कंट्री आज भी रेडियो एक्टिविटी को फेस कर रहा है। वहाँ जेनेटिक्स इश्यूज हैं, वहाँ के लोगों में बहुत मतलब वहाँ के जो वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ की पब्लिक दोनों ने बहुत फेस किया है। वो अभी इसमें थोड़ा बहुत नहीं पॉसिबल है क्योंकि आईएईए ने पूरा कंट्रोल ले लिया है, और अभी ये चीजें उतना इजीली कोई कंट्री कर नहीं सकती है। और एक्चुअली सभी कंट्री ने मिलके ही अब डिसाइड कर लिया है कि हम एटॉमिक पावर का यूज पीसफुल करेंगे। दूसरा है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी खूब बढ़ गए आगे। और जैसे ईटर में बहुत सारी कंट्रीज जॉइंटली काम कर रही है, वैसे
बहुत सारी कंट्रीज नाउ, डेवलपिंग कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर डूइंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमंग कंट्रीज. सो इसकी वजह से मैनेज द न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड हम उसको रेगुलेट कर पा रहे हैं. हमें मतलब हम उसकी सेफ्टी का कंसर्न देख रहे हैं. तो ये भी एक अपने आप में. और दूसरा क्या है, जैसे प्लाज्मा और ये सब में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसको हम ट्रांसफर करके जनरल पब्लिक के यूज में भी बहुत मतलब उसका यूज बढ़ा पा रहे हैं. तो एक्चुअली जब भी कोई भी इन्वेंशन हो रहा होता है, जैसे हमने स्पेस के इन्वेंशन में देखा कि स्पेस का डेवलपमेंट हो रहा था, तब हम लोगों को जीपीएस और बहुत सी चीजों का जैसे गिफ्ट मिला कि हम लोग आज मोबाइल जो यूज कर रहे हैं वो हम इसलिए कर पा रहे हैं कि ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज ये जो भी डेवलप हुआ उसके साथ साथ हमें ये ईच एंड एवरी ह्यूमन को एक कुछ बेनिफिट मिला है साइंटिफिकली जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करें. सेम वे प्लाज्मा ने भी हमारी लाइफ को बहुत इजी बना दिया है. बहुत सी चीजों में प्लाज्मा का भी ऐसा मतलब नोइंगली अननोइंगली हम लोग बेनिफिट ले रहे हैं. तो ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट से ही हो रहा है. और सो बेसिकली टेक्नोलॉजी हम इजीली ट्रांसफर कर पा रहे हैं. सो बाय लुकिंग इनटू ऑल दिस एस्पेक्ट्स, मतलब कॉस्ट एंड लैंड एंड टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, प्लस अभी जो हमारी एबिलिटी है, हमारी टेक्नोलॉजी जो बढ़ गई है कि हम उससे हमको लग रहा है कि न्यूक्लियर पावर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है टू मीट अवर रेगुलर रिक्वायरमेंट एंड अपकमिंग रिक्वायरमेंट जो कि डे बाय डे बढ़ने वाली है. तो इसके नॉट ओनली दिस 5 देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट, बट ये 5 मेजर बेनिफिट्स तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो हमें 24/7 पावर का कोई इश्यू नहीं रहेगा. ये जैसे कि मैंने बताया ये प्योरली नीट क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी जनरेट करेगी. तो एंड मोस्टली सेफ है. तो इसलिए इसमें से हमें जो अभी ग्लोबल वार्मिंग का इशू है दैट वी विल बी एबल टू मतलब मिनिमाइज और मतलब हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे इन अदर वे. देन इसमें जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर पा रहे हैं वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर सोर्स और ऑफ एनर्जी. तो ये उसका वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव बेनिफिट बोल सकते हैं कि वो है क्योंकि हम जो कॉस्ट डाल रहे हैं ना उसके सामने हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है वो रियली बहुत लार्ज है. दूसरा है एम्प्लॉयमेंट. जैसे कि मैंने अभी आपको ईटर का बताते हुए बताया कि ईटर में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो कि काम ना कर रहा हो. मतलब कि पूरा साइंस एंड ऑल इंजीनियरिंग फील्ड आर देयर. एंड अभी का जो टाइम है, मतलब अगर साइंस में हमें कुछ डेवलपमेंट करना है और तो एम्प्लॉयमेंट के भी अभी इशू चल रहे हैं. बट इस टाइप के प्रोजेक्ट जो अगर हम रियली डेवलप कर पाए और इस टाइप के हम रिएक्टर बना पाए तो डेफिनेटली वो खूब एम्प्लॉयमेंट भी लाएगा सबके लिए. And then as mentioned again, with the increase in the technology and I mean remote handling facilities, robotics and all other engineering, now that science which we are converting into engineering and trying to get the energy is very very safe. So we can say that nuclear energy is awesome. We can go for it. Yes, we can of course go for it, and that is the best solution. And my salute to Dr. Bhabha that at that time he was, I mean, able to think of this. And उनका विजन कितना पावरफुल था कि उनको ये पता, मतलब वो तब से ही इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मतलब ट्राई कर, मतलब उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया. नेहरू जी से ये परमिशन लिया एंड बिकॉज ऑफ हिम टुडे आवर कंट्री आर एट वन लेवल एंड वी आर also working for such a giant project with all other major countries. These are the reference, some of the reference. You can look into these sites if you are interested to see the detail about this nuclear power or energy. So basically if we think that see, if we see this picture, this person earlier in the few years back, if we see, then there was an image in this person's mind that nuclear power is dangerous and unstable. But after some time, with the advancement in the technology and science and all other field, now we can say that आप देख सकते हैं कि ये बूढ़े हो गए, इनका एज बढ़ गया, but now he has realized that no, it is not unstable, it is not danger, but we should go for this power, and this is actually the future. Thank you very much. Yes, ma'am. Nice talk, ma'am. Very informative. Thank you.
Thank you. Madam, we receive some questions. So first question is ITER India produce nuclear energy? Sorry, Hello. can you repeat? Yes, No. madam. We have a question answer session. Sir, ma'am, we received Yes. some question. First question is ITER India produce any nuclear energy? जो मैंने जैसे बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी तो कमर्शियली मतलब हम यूजफुल फॉर्म में जनरेट तो बाद में करेंगे। ईटर इंडिया तो ईटर का एक पार्ट है। जैसे बाकी 7 कंट्री की बात की, वैसे ईटर इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री हु इज कंट्रीब्यूटिंग 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट। आई मीन हम जो हमारा जो एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट है वो 10% है, बट इससे हमें 100% टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, जिससे कि हम हमारे यहाँ नेक्स्ट जो भी जो ईटर का एक बार ईटर सक्सेसफुली डेवलप हो गया या तो बन गया, तो उसका जो भी हमें नॉलेज है वो हमें 100% मिलने वाला है। और उसकी वजह से हम छोटे स्केल पे, लो स्केल पे, क्योंकि ईटर तो जैसे मैंने बताया आप सबने देखा कि बहुत जायंट है, और पर हम छोटे स्केल पे हमारा अपना एक रिएक्टर डेवलप कर पाएंगे, जिसको कि बाद में हम कमर्शियल पर्पज से यूज कर पाएंगे। दिस इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। जैसे आप Okay. कोई भी जैसे स्पेस पे और बाकी में भी जैसे हमने देखा है कि उपग्रह बनाए या तो कोई कैमरास बनाए, कुछ भी मतलब बनाते हैं, तो पहला जो होता है वो जनरली एक्सपेरिमेंटल होता है कि हम चेक करने के लिए, हम हमारा डेवलपमेंट करने के लिए बनाते हैं। सेम वे इसको हम हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, समझने के लिए बना रहे हैं। एंड एक बार ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो बाद में हम लोग मतलब हर कंट्री अपना एक और डेमो, वो प्लान में ही है कि डेमो बनाएगा एंड उसको बाद में फिर हम लोग कमर्शियल में ले जाएंगे। तो दिस इज अ लॉन्ग रन, बट यस चांसेस है कि हम सक्सेस मतलब जो जहाँ तक ये सब खत्म हो तब तक अगर हम डेवलप कर पाएंगे तो बेटर है। सही बात है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे पर अभी तो वो टूल्स डेवलप कर रहे हैं ना, ऐसा है। यस, ओके, थैंक यू। रिएक्टर डेवलप कर रहे हैं, यस 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 टेक्नोलॉजी। यस मैम, थैंक यू। और मैम, दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का तो बहुत बात किया, तो अभी एक क्वेश्चन ऐसा है कि क्या प्लाज्मा टेक्नोलॉजी जो है वो डेली लाइफ में उसका क्या एप्लीकेशन है, मतलब क्या यूज़ है उसका, प्लाज्मा का? हाँ, ओके, वेरी गुड। एक्चुअली मैंने अभी जैसे बताया कि हम लोग ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो उसके सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जनरेट कर पाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि एनर्जी तो ठीक है, एक गोल है हमारा, एंड दैट इज द मेन गोल कि हम न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप मतलब जनरेट कर पाए और बेसिकली कमर्शियल पर्पज से हमारे मतलब यूज में ले आ पाए। बट जैसे कि मैंने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट्स हैं और हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम प्लाज्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स समझ पा रहे हैं। उससे अभी इतना डेवलपमेंट हुआ है कि हमारा एक इंडस्ट्रियल यूनिट है हमारी इंस्टीट्यूट का, इट इज कॉल्ड FCIPT। और वहाँ पे जो है कि प्लाज्मा के डिफरेंट एप्लीकेशंस डेवलप किए जा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया वैसे वहाँ जो रिसर्च और डेवलपमेंट होता है उसको इजीली टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, एंड बाद में उसको ह्यूमन को मतलब बाकी ह्यूमन के यूज में मतलब उस टाइप का प्रोडक्ट या कुछ चीज बना के। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई भी एक सीड हो तो उसके ऊपर हम प्लाज्मा प्रोसेस करके उसको हम बहुत ज्यादा वो अच्छा फर्टाइल बन जाए, या मतलब उसको ज्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो वो बेसिकली उसके बायोलॉजिकल ये हुए, बाद में उससे जब कोई फ्रूट या मतलब वेजिटेबल या कुछ भी बनता है तो उसको भी हम प्लाज्मा प्रोसेस करके लॉन्गर टाइम तक उसको स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कुछ टोमेटो, पोटैटो एंड मतलब मेनी वेजिटेबल्स, अभी रिसेंटली ये स्टडी हुआ है कि प्लाज्मा प्रोसेस करके आप उसको स्टोर कर सकते हो। और ये सब करने के बाद जो लाइक कचरा बनता है उसको भी प्लाज्मा प्रोसेस से हम लोग मतलब टोटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिमिलरली जो हॉस्पिटल वेस्ट है, कुछ कुछ डिसीज ऐसे हैं लाइक एड्स और कैंसर, और जिसके कि जो हॉस्पिटल का जो वेस्ट है उसको टोटली डिस्पोज करना होता है कुछ कुछ म्यूनिसिपैलिटी का। तो वो सब के लिए हमारे यहाँ प्लाज्मा पायरोलिसिस करके एक सिस्टम बनाया गया है, जो कि वो जो ये वेस्ट है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो उसमें से गैस निकलते हैं उसको भी वो एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस में कन्वर्ट करके एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं। तो बेसिकली वो बहुत ही नीट, क्लीन एंड सेफ टेक्नोलॉजी है। तो जनरेशन से लेके डिस्ट्रॉइंग तक उसका हर जगह में यूज होता है।
एंड जैसे कि मैंने मेडिकल का भी बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ऑल, तो प्लाज्मा का स्टरीलाइजेशन में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो कुछ भी स्टरीलाइज करना है, और अभी हो सकता है कि हम कोरोना के लिए भी कुछ निकाल पाए कि उसमें मतलब, सही आई मीन बात। आई एम जस्ट जोकिंग, बट यस दिस काइंड ऑफ, बट बेसिकली मेडिकल में स्टरीलाइजेशन में प्लाज्मा का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और इंडस्ट्री की बात करें तो प्लाज्मा की एप्लीकेशन से हम मटेरियल की प्रॉपर्टी, क्लोथ की प्रॉपर्टी, वूल की प्रॉपर्टी, बहुत सारे मतलब इस टाइप के डेवलपमेंट्स कर पाए, जिससे कि खेती बाड़ी में अगेन मतलब जो क्लोथ इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारी जगह में मतलब हमें उसका बेनिफिट है। तो बट ये सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर करके उसको ट्रांसफर कर दिया गया है अवर प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, एंड दे आर एक्चुअली नाउ जनरेटिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच वी आर यूजिंग इन डे टू डे लाइफ। दूसरा है कि जो फिशन वाली बात की थी हमने, तो जब वो लोग भी कंट्रोल रोड, अभी रिसेंटली मतलब मेरा उनके साथ मतलब डिस्कशन हुआ था कि उन्होंने भी जो मटेरियल डेवलप किया, वो मटेरियल का बाद में उनको पता चला कि ये जैसे न्यूट्रॉन को रोक रहा है, वैसे ये मटेरियल को मिलिट्री या बाकी पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने अभी जैसे एक पर्टिकुलर मटेरियल का यूज करके भाभा कवच बनाया है, उसका नाम ही भाभा कवच दे दिया है। तो ये सब चीजें मतलब जो है ना कि हर लेवल के लोगों को यूज में मतलब आ रही है। जैसे मैंने मोबाइल का बताया है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन के साथ साथ हमें बहुत सी चीजें मिल गई, वैसे ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन के साथ साथ हमें पैरेलली बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी मिल रही है जो कि हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। यस मैम, थैंक यू। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियर मटेरियल, कैन वी गेटिंग न्यूक्लियर मटेरियल डायरेक्ट फ्रॉम नेचर? जो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो पूछना चाहते हैं कि वो डायरेक्ट हमको नेचर में से मिल सकता है? हाँ मतलब जैसे ये सब एलिमेंट जो मैंने बताया, यूरेनियम, थोरियम एंड ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन नेचर, बट वही है कि उसकी मात्रा जो है, अवेलेबल स्टॉक जो है वो लिमिटेड है। बट वो, हाँ वो नेचर से ही मिलता है। और फ्यूजन के लिए तो जो हमने जैसे बताया कि वो सी वाटर है, तो हमारे तो मतलब थ्री साइड सी है, तो दैट वे इट इज नॉट ए मेजर इशू फॉर अस। ओके, थैंक यू मैम। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, इज न्यूक्लियर एनर्जी चीप? वो मैंने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर ही दिया है ओके। कि ये कॉस्टली नहीं, मतलब वैसे कॉस्टली है अगर उसको कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और डीकमीशनिंग, डीकमीशनिंग मतलब इसमें क्योंकि रेडियो एक्टिविटी है, तो ये जब प्लांट को बंद करना है तो भी एक स्पेशल केयर लेना पड़ता है, एंड यू कैन नॉट डायरेक्टली स्टॉप इट मतलब। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए मतलब उसका अगर ओवरऑल कॉस्ट देखें ना तो वो बहुत हाई है। बट जैसे मैंने बताया कि उसमें जो हम इनपुट डाल रहे हैं, मतलब हम जो खर्चा कर रहे हैं, उसके सामने सामने हमको जो पावर आउटपुट मिलेगा वो इतना हाई है कि मतलब दिस कॉस्ट इज नेग्लिजिबल। और इवन हम सोलार और इन सब की भी बात करें, जैसे विंड पावर, तो उसमें भी कॉस्ट तो हम डाल ही रहे हैं। और उसका जो आउटपुट है प्लस उसका मेंटेनेंस और उसकी लाइफ स्पैन है ना, वो बहुत कम है। जैसे कि अगर हम सोलार की बात करें तो सोलार सेल की लाइफ मतलब एनवायरनमेंट में उसको रख दे, हमारे पास इनफ सनलाइट एंड सब कुछ है, फिर भी आफ्टर एवरी इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वी नीड टू चेंज द सिस्टम, और मतलब वो सब खर्चा और वो सब देखे तो उसके कंपैरिजन में ये अगर एक बार न्यूक्लियर रिएक्टर बन गया ना, तो वो तो जैसे मैंने बताया उसकी लाइफ 20 ईयर्स या ऐसे होता है ऑपरेशन फेज। तो मतलब लॉन्ग रन में अगर टोटल जैसे हम बोलते हैं ना कि इसका दोनों का सरेराश लिया जाए, एवरेज, तो वो कॉस्टली नहीं है। यस मैम, यस मैम, थैंक यू, थैंक you ma'am. We concluding our session today. Thank you first of थैंक all यू। for a wonderful and informative session with a very simple language, Hindi, English, and very nice photographs. Also, we are very much thankful to you, sir, you ma'am, or also ITER India for giving time to Science City and today's session. Thank you so much, ma'am. Also, थैंक यू वेरी मच। yes, ma'am, welcome. Also, I am thankful to all our attendees, participants for joining with us, attending the session, and spending costly time with us, valuable times. So, thank you, one and all. Also, I thankful to our Science City management and all my colleagues and friends. Thank you. Hope today our session will must useful
to all attendees and participants for getting actual information about the nuclear power and energy. Thank you once again. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you. I wanted to add, if anyone have any question, they can still ask in the comment, Yes, and ma'am. Yes, ma'am. yeah, so we will answer them, and I will be always there for such type of questions. So if anybody has any question, please raise it, and we will answer you later by mail or by social media. Thank you very much for your time, and thank you very much again, Science City, and you for this wonderful opportunity. Thanks. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much.